सभी को नमस्कार. Hello everyone. I am Dr. Udar, generous by name, generous by nature. Today in this lesson, we will study about the sequence of partial sums and the geometric series. लास्ट क्लास में हमने जो है ये सीक्वेंसेस कवर कर लिया था. तो अब हम आते हैं सीरीज़ पे. तो सीरीज़ में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स से पहले इसकी हेडिंग मैं बाद में देता हूँ. सबसे पहले जो है हमें सीरीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा. तो सीरीज़ में आते हैं क्योंकि सीक्वेंस हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन कर ली थी, सीरीज़ रह गई. तो सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस की नोटेशन क्या थी, एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूँगा. ये सीक्वेंस थी और सीक्वेंस लिखी जाती है A1 A2 A3 विद द कोमास. अब इसी चीज़ को मैं सीरीज़ में आता हूँ. सो सीरीज़ इज रिटन एज A1 प्लस A2 plus A3 so on. So in case of series, the commas are replaced by the plus sign. So this notation, this type of expression is called the series. We represent it by notation as earlier we have seen the notation for the sequence. So notation for this series is this one, that is sigma an. This series we don't have to find the plus, that is a later part. That what is the sum of the series, that is called the sum of the series. If we are interested in finding that, what would be the sum. But otherwise जो ये एक्सप्रेशन है सीरीज की हम बात करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सीरीज. दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज द notation. Now we are interested although in the sum, but finding the sum, before finding the sum, first of all we should know whether the series is convergent or not. That means this sum of the series would eventually turn out to be a finite quantity or not. If it turns out to be a finite quantity, then we say that the series is convergent. If it does not turn out to be finite quantity, then it is called non-convergent. Again, non-convergent can be of two types, either it is divergent or oscillatory. So this is about the convergence of series and non-convergence of the series. So first and foremost thing is we have to check whether this series is convergent or not, because if it would be convergent, only then its sum would be some finite quantity. So throughout this unit number 1, we are mainly concerned with finding whether the series is convergent or it is non-convergent. So this is the crux of this unit number 1, and this is the definition of series which I have written it out here and the notation of it. So first thing towards that goal is that we don't possess any specific tool right now to check whether the given series is convergent or not, because later on we would be equipped with the tests. We can apply those tests and conclude that this series is convergent or not convergent. But right now I don't have any such test before my hand, so I cannot apply it out. So अभी मेरे पास क्या है, हमने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस पढ़ा हुआ है. तो सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये पता लगाना है कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है कि नहीं है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो सीरीज है इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा जो है वो सीक्वेंस के अंदर. उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. तो कैसे करते हैं उसको जरा देखते हैं. तो ये हमारी सीरीज हो गई. तो अब हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं पार्शियल सम की. S1 का मतलब इस सीरीज का पहली टर्म लेंगे और वहाँ तक का सम निकालेंगे. वहाँ तक का सम मतलब वो टर्म खुद ही होगी. S1 इज A1.
S2 मतलब पहली दो टर्म्स का सम, A1 प्लस A2। सिमिलरली S3 पहली तीन टर्म्स का सम, सॉरी नॉट डॉट डॉट डॉट, पहली तीन टर्म्स, एंड continuing in this way, so on, we get Sn as A1 plus A2, so on up to An, and it will continue with n plus 1 and so on up to infinity as we are dealing in the infinite series। तो अब हम जो है इसकी सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो ये आ गई S1 S2 S3 एंड सो ऑन। तो ये जो S1 S2 S3 है, ये हमारे पास जो हमारी सीरीज़ थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सीक्वेंस में, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। पार्शियल सम इसलिए क्योंकि हम पार्शली जिस स्टेप तक हम जा रहे हैं उसी स्टेप तक हम जो है वो सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रही है। तो अगर जो है अगर ये, तो ये हमारी क्या होगी, इसकी नोटेशन लिख देता हूँ। तो ये Sn हो गई, ठीक है, सीक्वेंस। तो अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम फाइनाइट वैल्यू, से फॉर एग्जांपल S, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ थी, क्योंकि जब मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो पार्शियल सम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सम ऑफ द होल ऑफ द सीरीज़। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस ऑसिलेटरी है तो सीरीज़ भी ऑसिलेटरी होगी। तो सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए हम जो है सीरीज़ के बारे में ये कंक्लूजन पे अराइव हो सकते हैं। अगेन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो लेटर स्टेजेस पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, बट अभी हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की मदद से ही जो वो अराइव होने की कोशिश करते हैं। तो इसी पेज पे लिख देता हूँ, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लो हमारे पास है 1 + 1 + 1 + 1 सो, ये हमारी जो है इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब मैं इसका जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाता हूँ। तो S1 क्या हो गया 1, इसी लाइन में लिख देता हूँ ऐसे। S2 क्या हो गया 2, S3 क्या हो गया 3 एंड सो ऑन। तो Sn क्या हो गया हमारा n हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी Sn इज इक्वल टू दैट इज नथिंग एल्स बट n। अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो Sn किसको टेंड हो रहा है, जो है Sn हो गया इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी इज सफिशिएंट जो है। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है। तो ये हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डाइवर्जेंट। सो फ्रॉम हेयर आई कंक्लूड दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 मार्क कर देता हूँ इसको। सपोज दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैं ऑसिलेटरी का ले लेता हूँ। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 सो, ठीक है। तो अब इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, S1 इज 1, S2 इज 0, S3 इज अगेन 1 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस हमारी हो गई 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। ये हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो गई। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो ऑसिलेट कर रही है, जैसे हम पहले सीक्वेंसेस में पढ़ चुके हैं।
तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये सीरीज़ है ये भी ऑसिलेटरी सीरीज़ होगी। अब एक हमने एग्जांपल ले लिया डाइवर्जेंट का, एक एग्जांपल ले लिया हमने ऑसिलेटरी का, एक एग्जांपल ले लेते हैं कन्वर्जेंट का। मान लो जो है मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ ले लेता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वहीं से एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना लेता हूँ। 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब so on. As we all know from our 11th class that this would turn out to be convergent, or suppose there we have studied the sequence, so let us leave about the series थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे geometric series। तो ये हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ ले ली। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। वैसे इसका हमारे पास टेस्ट होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का टेस्ट है, वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की मदद से इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल लेता हूँ मैं। तो S1 क्या हो गया 1/2, नीचे लिख देता हूँ चलो क्लैरिटी के लिए। S2 क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 + 1 2 स्क्वायर which is equal to 3/4. Similarly, S3 would turn out to be 1/2 1/2 square. ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम देखेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं उससे, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, पार्शियल सम की मदद से कर रहा हूँ मैं, तो इसको उसी तरीके से देख रहे हैं हम। तो ये हो गया 4 + 2 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, और हो गया 7/8। सिमिलरली अगर आप S4 निकालोगे, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो आप यू विल अराइव हियर एट इट वुड टर्न आउट टू बी 15/16 एंड सो ऑन। तो हमारे पास Sn जो है, देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा जो है वो एक कम आ रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा 2n। आप देख सकते हो 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। तो डिनोमिनेटर 2n है, तो न्यूमरेटर उसमें एक कम है, तो 2n - 1। ये हमारा जो है Sn आ गया। अब ये मुझे पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ। तो इस साइड में ले लेता हूँ लिमिट। तो लिमिट अब मैं लिखूँ ना लिखूँ वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम सिर्फ लिमिट भी लिख देते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। तो इसको पहले मैं एक के नीचे एक ले लेता हूँ, अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो अंदर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब पहले वाला तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा 1, और दूसरे वाले पे अगर हम लिमिट लगाएंगे, चलो लिख देता हूँ, तो 1/2n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सेकंड वन टेंड्स टू 0, सो अल्टीमेटली द लिमिट टर्न आउट टू बी 1। तो Sn कहने का मतलब इम्प्लाइज Sn टेंड्स टू 1। तो ये जो लिमिट ऑफ Sn है दैट इज आल्सो द सम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे Sn जो है ये कन्वर्जेंट हो गया, तो Sn कन्वर्जेंट हो गया, तो ये जो हमारी सीरीज़ थी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है बेसिकली, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। तीनों केसेस में हमने, पहले में डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, तीनों में हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का इस्तेमाल किया है, और वहाँ से हमने कंक्लूड किया है कि जो है कौन सी सीरीज़ ऑसिलेटरी थी, डाइवर्जेंट थी या कन्वर्जेंट थी। यहाँ पे जो 1 है that is also we can call it as sum of the infinite series. So this is the concept of sequence of partial sums. अब हम आते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज पे, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिनाज में हम डील करेंगे उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, तो इस वजह से
भी ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो बाद में हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ेंगे उसमें भी जो ये पॉजिटिव टर्म के टेस्ट्स हैं दे आर यूटिलाइज्ड इन दैट वन आल्सो, सो दैट इज़ वाई हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के इतने सारे टेस्ट पढ़ते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दे कैन बी अप्लाइड इन अल्टरनेटिंग सीरीज एज वेल टू सम एक्सटेंट। पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या है कि ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज पॉजिटिव। तो हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या इसमें स्पेशल चीज़ आ जाती है कि अगर मान लो जैसे A1 हमारे पास है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, इसकी हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स निकालते हैं। तो पहली टर्म आ गई S1, S1 के बाद हम S2 निकालेंगे तो A1 में A2 ऐड हो जाएगा, तो A2 कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसमें हम कुछ चीज़ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो S2 क्या है, वो S1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सिमिलरली S3 उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमें क्या मिला कि जो Sn है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसी वजह से हमने जब सीक्वेंस में जो पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, बाउंडेडनेस और मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी हमने इसीलिए पढ़ी थी कि उसका यूज़ देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में हमने जब पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाते हैं तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आती है, तो दैट इज़ वाई वो हम वहाँ से जो रिजल्ट हैं कन्वर्जेंस के वहाँ से वो इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, इसलिए मोनोटोनिसिटी वहाँ पे पढ़ाई थी। तो Sn इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिकली इंक्रीज हो गया, तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि या तो ये कन्वर्जेंट होगी या ये डाइवर्जेंट होगी, ये ऑसिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑसिलेट करने के लिए कुछ नेगेटिव टर्म बीच में आनी चाहिए थी। तो ये अब जब हमने पहले एक डायग्राम पढ़ा था, वो डायग्राम एक बार यहाँ चलिए वापस ले आता हूँ उस पर, एक बार सीक्वेंस वाले पे, ये डायग्राम हमने पढ़ा था, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, नॉन कन्वर्जेंट है। नॉन कन्वर्जेंट के दो सब कैटेगरी थी, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। तो अब इस केस में ऑसिलेटरी वाला पार्ट जो है वो नहीं हो सकता, तो हम या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, और सीक्वेंस में जब हम कहते थे कि नॉन कन्वर्जेंट है, तो अब सीधा उसको हम डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज में सिर्फ और सिर्फ दो ही केस होंगे कि या तो जी वो कन्वर्जेंट है और नॉन कन्वर्जेंट का मतलब ही ये हो गया, जैसे मैं नॉन कन्वर्जेंट कहूँगा तो वो, या यूँ कहिए कि मैं डाइवर्जेंट कहूँगा, वो वन एंड द सेम थिंग उसमें इम्प्लाई करेगा। दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा था सीक्वेंस में कि इसकी कन्वर्जेंस के लिए कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबो हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो जब हम पार्शियल सीक्वेंस और पार्शियल सम बनाएंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की, तो अगर मैं उसको सिर्फ बाउंडेड अबो दिखा दूं तो हमारा काम खत्म हो गया, कि वो अपने आप ही हम बता देंगे कि वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो नहीं है बाउंडेड अबो तो फिर वो कन्वर्जेंट नहीं। ठीक है, अब जो है ये ज़रूरी नहीं कि मतलब ये हर जगह हम ऐसे दिखाएंगे, कि क्योंकि प्रूफ्स में कुछ जगह हमें ज़रूरत पड़ती है इस टाइप से दिखाने की, अदरवाइज़ हमारे पास टेस्ट होते हैं हम सीधे टेस्ट लगा देते हैं, पर कई जगह हमें प्रूफ में ये बाउंडेडनेस शो करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ और इसकी इम्प्लीकेशंस कि क्या मतलब है इसका पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होने का। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इस टाइप की होती है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जैसे 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन। आर जो है वो इट कैन वेरी फ्रॉम 0 से यहाँ तक अगर होगा
तो ये कन्वर्जेंट है, और r अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट है। यहाँ पे जो है, वैसे ये अगर मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ नहीं लूँगा तो ये मॉडुलस ऑफ r हो जाएगा, बट हम ले रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़, तो इसलिए मैंने इसमें मॉडुलस नहीं लगाया है। क्योंकि अब एक चीज़ और बता दूं, अब मैं जब पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हमने बात की है, तो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ईच एंड एवरी टेस्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब मैं चाहे उसको मेंशन करूं ना करूं, स्पेसिफिकली कैटेगरिकली मैं आपको बताऊं ना बताऊं कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि अब हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के फील्ड से बाहर निकल रहे हैं, जब तक हम जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के अंदर ही हैं। ठीक है, तो अब देखो, जीरो से नीचे मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर जीरो से मैं नीचे ले लूँगा तो यहाँ पे आर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, आर क्यूब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ नहीं बनेगी। तो मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में ही हूँ, तो इसलिए आर जो है वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया हुआ है। ठीक है, इसका आमतौर पे कई सारे प्रूफ हम बाद में, जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन्हीं के प्रूफ देखेंगे हम। अदरवाइज आवर मेन फोकस वुड बी ऑन द सॉल्यूशन पार्ट, क्वेश्चंस पार्ट, क्योंकि जो है गेट में भी, नेट में भी जो है, अब तो नेट भी जो है मल्टीपल चॉइस हो गया, तो उसमें कैलकुलेट करना होता है, बट लेकिन हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। तो रिजल्ट मैंने जैसे लिख दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के हम देख लेंगे प्रूफ जो है। इसका एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं जस्ट सीरीज़ आज से, तो इसका एक बार हम प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, पहले मैं जो है r इक्वल टू 1 लिखना भूल गया मैं। पहले मैं जो है r इक्वल टू 1 का केस सेग्रीगेट करके, सेपरेट आउट करके इसकी अलग से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को दूसरों को अलग ले लेंगे, जो है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 केसेस। तो r अगर 1 हो गया तो हमारी सीरीज़ क्या हो गई, ये हो गई, और ये अभी अभी हमने ऊपर देखी थी, इसलिए मैंने ये सीरीज़ ली थी एक्चुअली। जो है आपको थोड़ा सा ये देखिए, जो पहले वाला एग्जाम्पल है ये यही लिया हुआ था, ताकि मुझे दोबारा से ना शो करना पड़े कि ये डाइवर्जेंट है और ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ से अभी अभी जो किया है वहीं से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं वैसे जैसे वहाँ पे की थी, और वो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ दोबारा, बट प्रूफ के अंदर कॉपी पेस्ट वहाँ से हम कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो r इक्वल टू 1 का केस हमारा डन हो गया कि r इक्वल टू 1 है, तो ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। अब मैं ले लेता हूँ केस नंबर 2, r इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो r इज़ नॉट इक्वल टू 1 में हमारी सीरीज़ है 1r r स्क्वायर सो ऑन, ये आ गया। अब मैं जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बना लेता हूँ, तो वो हमारी होगी Sn, तो मतलब अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स। और 11वीं क्लास में हमने इंडक्शन चैप्टर में उसका सम हम निकाल चुके हैं, तो वो आता है ये। आप इसको चाहो तो 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो। तो ये हमारा Sn आ गया। अब मैं ज़रा लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं इसको दो हिस्सों में लिख लेता हूँ, r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे तो n है ही नहीं, तो फर्स्ट पार्ट पे सिर्फ n है, तो ये आ गया लिमिट r रेज टू पावर n डिवाइड बाई r माइनस 1। सिर्फ इस हिस्से पे लिमिट लगेगी, माइनस ये एज इट इज़। अब हम केस लेते हैं, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1, अगर r जो है ये 1 से बड़ा हो गया, r अगर 1 से बड़ा हो गया और n जो है वो इन्फिनिटी, चलो लिख देता हूँ इधर, n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जैसे मान लो 1.5 ही ले लें, तो 1.5 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 इंक्रीज़ हो रहा है,
फिर क्यूब लेंगे तो और इंक्रीज़ हो गया, ऐसे ही जो है इसकी रेज़ टू पावर n हम जो बढ़ाते जाएंगे तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो फर्स्ट पार्ट का जो न्यूमरेटर है ये जो है ये इन्फिनिटी को टेंड करता जाएगा। सेकंड पार्ट कोई फिक्स क्वांटिटी है तो वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, बट फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड होता जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। एम्प्लाइज सीरीज हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। अब अगर जो है आर जो है वो लेस देन 1 हो जाए तो लेस देन 1 में क्या हो गया, जो आर रेज टू पावर एन है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर मैं 0.5 ले लूँ आर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 और छोटा हो गया, क्यूब लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेज टू पावर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट पार्ट बिकम्स 0। तो ये हमारे पास लिमिट एस एन ये आ जाएगा -1/r-1 विच आई कैन राइट इट एज 1 - r। तो ये जो है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी क्योंकि r इज़ फिक्स। तो इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं ये कन्वर्जेंट है। तो तीनों केसेस को मैं ऊपर से मिला दूं, इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। तो यहाँ हम समराइज कर देते हैं कि r जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और r अगर जो है लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। और यही हमारा जो है वो रिजल्ट था जो ऊपर लिखा हुआ है। 0 वाला नीचे वाला केस मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली r लेस देन 1 मैंने ले लिया, और लीस्ट जो है बाउंड जो है उसकी वो 0 है, तो उससे नीचे हम जा ही नहीं रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखा है कैटेगरिकली, कि ऐसे नहीं लिखा है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वी आर अबव द 0। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का प्रूफ। अब एक एग्जांपल जो है, सेम एग्जांपल, इसलिए मैंने ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का लिया था, जो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अभी ऊपर लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार मैं r निकाल लेता हूँ। तो r क्या है, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो बाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट। तो बाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बिकॉज इट इज़ लेस देन 1। ये हमने सीधा कंक्लूड कर दिया कि ज्योमेट्रिक सीरीज। ऊपर हमने देखो थोड़ा सा लंबा यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से किया था, पर अब हमारे पास हमारे हाथ में टेस्ट है, एक टूल आ गया है। तो जब जो भी टूल हमारे पास है तो उसका हम फ्रीली और जितनी बार चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, ये इक्वल टू का तो मैंने ले लिया था, ये इक्वल टू का है, ये ऊपर लिया था 1, या कोई और भी आप ले सकते हो, यू कैन ट्राई एट योर ओन। और अगर मान लो r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, मान लो मैं ले लेता हूँ 1 2 4 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे r क्या है, 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट। तो या आज हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा, सीरीज़ क्या है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पॉजिटिव टर्म सीरीज़, और जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम जो है नेसेसरी कंडीशन करेंगे, एक जो है जो वो भी इस्तेमाल होती है कन्वर्जेंस के लिए, और दूसरे टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, मे बी फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।